قوم کے بچوں، خواتین اور بزرگوں کے قتل کا دلیری سے بدلہ لیا، کسی بھی جارحیت کو روکنے اور شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دشمن کو واضح پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں مثالی کارکردگی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی سیز فائر خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دینے پر جوانوں کی تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی بہادرانہ جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ پر عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ امیر قطر سے بھی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے اور جلد ملاقات پر اتفاق۔ شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ ملائیشین عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ تاجک صدر کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ قربانی ہو گئی، گوشت کی تقسیم کے بعد خاتون خانہ نے سنبھال لی کچن کی ذمہ داری۔ چٹپٹے پکوانوں سے ہوگی مہمانوں کی توازو، کہیں بنے گی کڑھائی، کہیں بریانی، کہیں شامی کباب، کہیں پائے نہاری، ہوگا ہلا گلا، منچلوں کی چلے گی باربیکیو پارٹی۔ ملی پکلا کو چولی سے جاچیا جو مر گیا۔ انکل نے میرا بکرا چھری سے کاٹ دیا اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ بچہ بکرے کی جدائی پر افسردہ، رو رو کر برا حال۔ ماں سمجھاتی رہی لیکن بچہ روتا رہا۔ بکرا کاٹ دیے یار۔ اپنے دل سے لگا کر رکھا، اپنا بنا کر رکھا، دن رات چارہ کھلایا، نیند کو بھلایا لیکن اپنے پیارے پیارے جانور کو بہلایا۔ اپنے پیارے دوستوں کی قربانی پر بچے افسردہ کہتے ہیں کہ سال میں کچھ ہی دن جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن یہ جانور سالہ سال یاد آتے ہیں۔ مہینے پالو، اس کو لاؤ، اس کو کھلاؤ، اپنے پاس کا خیال کر رکھو اور ایک دن وہ اس کو قربان کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ میں نے یہ بکرا پالا ہے، بہت پیارا تھا، اس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا۔ ہم لوگ ابھی یہ قربان ہو رہا ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ حضور محترم جناب آداب، آج کے وی آئی پی صرف قصاب کسی کو بکرا گرانے کا کہہ کر ہو گئے 9-2-11 تو کہیں گائے کے گوشت کا سرما بنا ڈالا، کہیں وقت پر نہ پہنچنے کا بنایا بہانہ۔ اناڑی قصائیوں کی بھی 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں، اکڑی گردن اونچی اڑان۔ بکرے کے 6,000 سے 10,000، گائے نمٹانے کے 50,000 تک ڈیمانڈ۔ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں، عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ ماہرین کا مشورہ۔ ماہرین صحت نے کہا کہ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ امراض قلب، ذیابیطیس اور دیگر امراض کے شکار لوگوں کو خاص احتیاط کی ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد، گورنر پنجاب سلیم حیدر نے اٹک، چیئرمین MQ پاکستان خالد مقبول صدیقی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور دیگر نے کراچی میں عید کی نماز پڑھی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ GTV نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں آصف زرداری نے کہا، یہ دن ہمارے ایمان، قربانی، ایثار اور بھائی چارے کے جذبے کو از سر نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ ہمیں بطور قوم ایک دوسرے کا سہارا بن کر پاکستان کو ایک عظیم اور خوشحال ملک بنانا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا پیغام صرف جانور قربانی تک محدود نہیں، یہ اپنے نفس،
ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फिक्र का मुक़द्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर FCKP साउथ वाना का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहोदा पर फूल चढ़ाए, शहोदा को खराज तहसीन पेश किया। जवानों से खिताब में वज़ीर दाखिला ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। बेफरमानी ना उसकी, हर गल पूछ के करे, घर आया वह तो कोई परेशानी नहीं, माँ दी दुख तकलीफ हो गया तो पहले हाजिर हो खलो। शहदा को कौम का सलाम, पाक वतन की बका और सलामती में शहीदों का खून शामिल। नायक तौकीर अब्बास शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार था, माँ को तकलीफ होती तो फौरन हाजिर होता था। शहादत को 4 माह बीत गए लेकिन हम उसे नहीं भूले। 2 ईदें घर न आया, इस ईद पर आना था मगर शहादत की खबर मिली। शहीद की बेटी का पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद के नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब। भारत के पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के इल्जामात, पाकिस्तान ने एक बार फिर तरदीद कर दी। बिलावल भुट्टो का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, बोले भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी, सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का सेहरा अपने सर ले लिया। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं होगी। मेरे तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। मजीद कहा, हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। आइन में तो बिल्कुल लिखा हुआ है, बट आइन में तरीक़ेकार भी है ना। आइन में ये तो नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहेंगे और सूबा बन जाएगा। ये बड़ी हैरत की बात है कि सिंध असेंबली में बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं, नेशनल असेंबली जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ और कहते हैं। हम इल्जामात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। मेयर कराची का मुखालिफिन को मशवरा, कहते हैं MKM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की लेकिन अफसोस कि सियासी मुफादात को शहर के मुफाद पर तरजीह दी जा रही है। पूरे पंजाब में 1 लाख सफाई वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं जो मशीनरी के जरिए आलाइशों को डंपिंग साइट तक पहुंचा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहली मर्तबा पंजाब में तमाम घरों में बैग्स तकसीम किए गए। गली महल्लों और बाजारों से आलाइशों को उठाकर ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। भारत की मुश्किलात में इजाफा, पाकिस्तान के खिलाफ बिलाजवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स मुमालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स मुमालिक के भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्जाम। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है, इनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऑपोजिशन 24 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए हमारे साथ बात करे। मुआशी खुशहाली हर फर्द का मसला है।
बानी पीटीआई से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। 200 FIRs बेबुनियाद रेफरेंसेस और गिरफ्तारियों के बावजूद तहरीक जारी रहेगी। क़यादत जल्द अवाम के दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं रेफरेंस पहले ही मुस्तरद हो चुका है, मुखालिफिन के होश उड़े हैं। बानी पीटीआई का सिपाही हूँ, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। शरीफ खानदान ने मोदी के खिलाफ कभी जुबान नहीं खोली। उमर अयूब के कौम और हुज्जाज कराम को ईद की मुबारकबाद पेश। पाकिस्तान ने अजीम जंग जीतकर अफवाज की कुर्बानियों से भारत के गुरूर को चकनाचूर किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को बेनकाब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। मर्दान में अफसोसनाक हादसा। आर्म कॉलोनी में मुबैना सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान मुनहदम हो गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सह्यूनी फौज का गजा में इमदादी कैंप के करीब भूख के मुतासरीन का एक और कत्लेआम। 8 फलस्तीनी शहीद। साबिरा शहर में मिसाइल हमले में 15 फलस्तीनी जान से गए। सुबह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 56 हो गई। खान यूनुस में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 जख्मी। रफा से थाई नज्जाद एक और यरगमाली की लाश मिल गई। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश और ड्रोन से हमले। 3 इमदादी कारकुनान समेत 6 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। कई इमारतों में आग लग गई। हमले के बाद दोनों मुमालिक में कैदियों का तबादला खटाई में पड़ गया। अमेरिका की 2 रुखी पॉलिसी, एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ उस पर पाबंदियों के वार। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाबंदी अमेरिकी पॉलिसी साजों की ईरान अवाम से दुश्मनी की अक्कासी करती है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का अगले साल मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान। सरबराह मोहम्मद यूनुस कहते हैं इंतखाबात अप्रैल 2026 के पहले 2 हफ्तों में मुनक़िद किए जाएंगे। 15 साल बाद बांग्लादेश को एक ऐसा पार्लियामान मिलेगा जो हकीकी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी करेगा। तुर्किया में ईद के पहले रोज कुर्बानी के दौरान 14,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। अनकरा में 1049, इस्तांबुल में 753 और कोनिया में 655 अफराद जख्मी हुए। तुर्क वजीर सेहत का शहरियों को पेशेवर कस्साबों की खिदमात लेने का मशवरा। कौमी खिलाड़ियों की जानिब से भी कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने पैगामात में मुल्क को कौम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया।